So hello friends, I am here with my next module on queuing theory. Queuing theory या waiting line, as you know, is a very interesting topic in operation research. Uh, Basically, queuing theory has been applied to wide variety of problems in business situation. All situations where customers are involved, such as restaurant, cafeterias, departmental stores, cinema hall, your railway ticketing counter, post office, right? So all these area you can easily see what like you can apply queuing theory in all those places. I will first let you know what how actually queuing theory came into picture. So basically, the theory owes its development to Mr. A.K. Erlang in 1903. Okay, so he developed the theory on queuing. So why he developed? Basically, in 1903, he took up a problem on congestion of telephone traffic. Means there was a congestion initially. What happens where was there were in telephone exchange there were many operators who basically connected line manually, right? So during that period, telephone operators were unable to handle the call moment they were made, resulting in delayed call because the number of calls were too much, right? So it uh, basically due to that Mr. Erlang came to know that we have to solve this problem with the help of queuing. So he developed various models. So we will first know what are the important parameters in queuing theory. The first one is waiting line models. Okay, so before I coming to the model, I will let you know what is this single server, multiple server. Single server um, is a example where you can see there is only one server and there are multiple number of customers, right? So in this type of problems, generally this single server handles only less number of customers, right? When the number of customers increases, the company or the service provider increases their server, then it comes to multiple server. So in real life, in the problem, we can face different in queuing problem we can face different types of server problem, a single server problem or a multiple server problem, right? सो या तो एक सर्वर रहेगा जो कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने वाला है या तो मल्टीपल सर्वर रहेगा, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. उसके बाद इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दो पैरामीटर्स है. फर्स्ट इज अराइवल रेट एंड सर्विस रेट. एज ऑल यू नो, अराइवल रेट मीन्स अगर आपका जो सर्वर है, सर्वर इज द प्लेस वेर यू आर गेटिंग सर्व्ड, राइट? तो आप फॉर एग्जांपल आप टिकट घर पे जा रहे हो रेलवे में, तो आपको टिकट मिल गया तो आपको सर्व हो गया, राइट? तो वैसे ही अराइवल रेट मतलब अगर रेलवे टिकट काउंटर है तो एवरी आवर कितने लोग उस काउंटर पे आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज अराइवल रेट. Okay, and then service rate. Arrival rate is represented by lambda, okay, per hour. So अगर आपको 20 दिया हुआ है तो इट इज़ यू कैन अज्यूम इट इज़ 20 पर आवर. जनरली 20 पर आवर दिया होगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है. सेकंड इज सर्विस रेट. सर्विस रेट म्यू पर आवर, ठीक है. आप कितने लोग आ रहे हैं सिस्टम में, ठीक है, और कितने लोग सर्विस करके जा रहे हैं एक घंटे में, ठीक है. तो जो जितने लोग सर्विस सर्व्ड होके जा रहे हैं उनको बोलेंगे म्यू या सर्विस रेट, ठीक है. तो ये भी पर आवर में दिया रहेगा, सपोज 20, ठीक है. सो अगर ये दोनों 20 हो गया, दैट मीन्स आपका सिस्टम जो है वो एकदम ऑप्टिमल सिस्टम है, ठीक है. नो चेंजेस इज नीडेड, बट यू कांट सी एन ऑप्टिमल सिस्टम, ठीक है. इट इज़ वेरी रेयर टू सी दिस काइंड ऑफ सिस्टम्स, ठीक है. या तो जनरली क्या होता है, जनरली हम हमेशा सर्विस रेट ज़्यादा ही देखते हैं, ठीक है, बिकॉज अगर कम देखेंगे तो उस केस में आप सर्विस बढ़ा देते हैं कंपनी, सो दैट सारे कस्टमर्स को सर्व कर सके. सो आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट प्राइवेट कंपनीज. गवर्नमेंट में आपको यू ऑल नो व्हाट इज द सिचुएशन. ओके,
उसके बाद सेकेंड टाइप जो है, सेकेंड पैरामीटर्स है वो क्यू लेंथ है, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में, फॉर एग्जांपल फाइनाइट क्यू लेंथ, फाइनाइट क्यू लेंथ मतलब क्या होता है कि आप नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो लिमिटेड रहेंगे। जैसे कि एक मैकेनिक है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सो in a mechanic there is a in his workshop there is a place for 4 vehicles, right? So at max 4 vehicles can come and wait over there to for getting served, right? So finite हो गया, मतलब फिफ्थ के लिए जगह ही नहीं है सिस्टम में, ठीक है। तो आपका जो क्यू लेंथ है बट ऑब्वियस है वो लिमिटेड रहेगा, फाइनाइट रहेगा, ठीक है। तो ये फाइनाइट क्यू लेंथ आपको बहुत ही छोटे और ऐसे सिस्टम में मिलेगा जो बहुत ही छोटे लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट क्यू लेंथ, इनफाइनाइट क्यू लेंथ आपको जनरली, इफ आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल, सो डी मार्ट में आपको इनफाइनाइट क्यू लेंथ दिख जाएगा, या तो रेलवे काउंटर्स, वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। समटाइम्स आप देखेंगे कि क्यू लेंथ बढ़ते ही जाता है, राइट। सो देर इज़ बेसिकली देर इज़ नो बाउंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ क्यू, ओके। फाइनाइट में आपके पास स्पेस लिमिटेड है तो उतने ही आ सकते हैं, बट इनफाइनाइट में जैसे आप रेलवे काउंटर बताया, तो अगर रेलवे काउंटर के यहाँ से लाइन शुरू हुआ तो इट कैन गो अप टू इवन आउटसाइड द स्टेशन ऑल्सो, राइट। सो ड्यूरिंग द डिमांड आवर्स, सो वो इनफाइनाइट क्यू लेंथ हो जाता है। सेकेंड, पॉपुलेशन टाइप्स। अब पॉपुलेशन टाइप्स और क्यू लेंथ आप दोनों में कंफ्यूज होंगे, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पॉपुलेशन टाइप में फाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये फाइनाइट पॉपुलेशन किसके लिए होता है? फॉर एग्जांपल देखिए, हर एक सर्विस जो है वो स्पेसिफिक पीपल्स के लिए रहता है, इट इज़ नॉट ओपन टू एवरीवन, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दूं, सो डॉक्टर, ओके, सो डॉक्टर्स के यहाँ जो कस्टमर्स आएंगे, जो पेशेंट आएंगे, वो फाइनाइट या इनफाइनाइट पॉपुलेशन के होंगे। तो वो फाइनाइट पॉपुलेशन के होंगे बिकॉज जो बीमार हैं, ठीक है, फिर वही एप्लीकेबल हैं डॉक्टर्स के यहाँ जाने के लिए। सो जो टोटल पॉपुलेशन है एरिया का, उसमें सिर्फ जो बीमार हैं, ठीक है, वो होंगे आपके फाइनाइट पॉपुलेशन टाइप, ठीक है। दूसरा, डॉक्टर का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अभी ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस यू कैन इजीली सी कोविड कैन हैपन टू एनी वन, ओके। सो बेसिकली ड्यू टू इन्फेक्शन रेट वेरी हाई, you can consider COVID as a infinite population type of problem, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है एंड everyone is open to that. So अगर एक डॉक्टर के पास अगर कोविड के केसेस या एक हॉस्पिटल के पास कोविड के केसेस रहेंगे तो उसके लिए इनफाइनाइट पॉपुलेशन मॉडल हमको अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनाइट में मीन्स इट इज़ एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल्स इन ओवरऑल पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी ऐसा एग्जांपल लीजिए जो कि सारे लोग नहीं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स का एग्जांपल ले, तो मोबाइल फ़ोन ज़्यादातर यंगस्टर और इन्हीं में क्रेज़ रहता है, ठीक है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू एल्डरली पीपल कि उनको कौन सा फ़ोन आया कौन सा नहीं। तो वैसे ही हर एक जो सर्विसेज, मैकेनिक का एग्जांपल जो मैंने दिया, तो इसमें जो कार चलाते हैं सिर्फ वही है, राइट। तो फाइनाइट पॉपुलेशन टाइप हो गया, ठीक है। पर आप अगर नॉर्मल कोई ऐसा ले, जैसा बिस्किट की कंपनीज के कस्टमर्स हो गए, तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन बिकॉज एवरीवन ईट बिस्किट्स, राइट। सो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट अ पैरामीटर इन क्यूइंग मॉडल, ठीक है, इट इज़ अ पैरामीटर इन क्यूइंग मॉडल, ओके। सो नेक्स्ट वी विल, सो ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमको देखने थे। अभी हम लोग 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आएंगे, ठीक है, विच आई थिंक कैन बी आस्क्ड टू यू इन एग्ज़ाम, ठीक है, एज अ थियरी। सबसे पहला है बार्किंग, ठीक है। I've already mentioned what is barking. So barking is if queue length appears to be very large and customer hastens to join the queue. This is called as barking. For example, me, I went to a railway ticketing counter and I saw कि multiple servers थे, पर सारे servers में बहुत लंबा लाइन था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ barking किया, मतलब I was
आई वांटेड द टिकट, पर मैं आई वाज हेजलिंग वेदर आई शुड जॉइन, बिकॉज उसके लिए बहुत टाइम लगेगा और मुझे थोड़ा सा अर्जेंट था जाना, ठीक है। तो उसको बहुत, बाकी मैंने ज्वाइन नहीं किया क्यू को, ठीक है। मैं विदाउट टिकट इज जनरली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। पर मैं विदाउट टिकट ट्रैवल कर लिया, राइट। सो मैंने क्या किया, ये जो क्यू था, क्यू लेंथ को स्किप कर दिया क्योंकि अर्जेंसी था, ठीक है। बिकॉज हाँ, तो मैंने सिर्फ देखा और क्यू को देखा और मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं निकल गया क्यू से। बेसिकली क्यू को ज्वाइन नहीं किया, तो उसको बोलते हैं वाकिंग, ठीक है। वाकिंग दो टाइप के होते हैं, एक फोर्स्ड और एक अनफोर्स्ड। फोर्स्ड वाकिंग इज यू आर forcefully thrown out of the system, not thrown by the people waiting in queue, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिक का जैसे दिया, चार जगह था, चार गाड़ियों की खड़ी होने की, ठीक है। तो आप आए, आपने देखा, पर आपको अलाउ ही नहीं किया गया, नॉट फ्रॉम मैकेनिक, नॉट फ्रॉम कस्टमर्स, किसी ने भी आपको मना नहीं किया, बट सिचुएशन ने आपको फोर्सफुली सिस्टम से थ्रो किया बाहर, राइट। तो फोर्स है। और दूसरा अनफोर्स, जो मैंने बताया आपको, रेलवे टिकटिंग काउंटर, नो वन इज फोर्सिंग मी कि आप मत आओ, ठीक है। इट वॉज माई डिसीजन कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम। तो वो अनफोर्स टाइप हो गया। सेकेंड टॉपिक है रेनेजिंग, ओके। रेनेजिंग मतलब समटाइम्स पर्सन ज्वाइन एंड लेटर डिसकंटिन्यू द क्यू इज कॉल्ड एज रेनेजिंग। सो सपोज मैंने टिकटिंग काउंटर ज्वाइन किया एक क्यू को, एंड आई वेटेड फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट्स। उसके बाद सिंस इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिस, तो उनका लंच टाइम हो गया, राइट। सो दे वेंट फॉर, लाइक दे डिडंट केयर कि कितना क्यू बढ़ रहा है, ठीक है। सो उनका टाइम हो गया, तो दे वेंट फॉर लंच, राइट, विदाउट अ रिप्लेसमेंट। सो हम क्या करेंगे, अभी क्यू में खड़े रहना पड़ेगा। व्हाट आई विल डू, अगेन टाइम लग रहा है, सो आई विल क्विट द क्यू, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज रेनेजिंग, कि मुझे आई एम अनसेटिस्फाइड, ठीक है, और आई एम अनसर्विस्ड बाय दी सर्वर, और मैं क्यू को छोड़ देता हूँ। तो अ, उस मेंटालिटी या उस थ्योरी को बोलेंगे रेनेजिंग, राइट। उसके बाद आता है जॉकिंग, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एंड आई थिंक सबने अपने लाइफ में किया होगा कभी ना कभी। So I'll read out for you first. If there are more than one queue and there is tendency to join other queue, thinking other queue are service faster than my queue, right? This is called as jockeying if it happens for initially. So jockeying मतलब कि मल्टीपल काउंटर्स थे और हर जगह लाइन था। इनिशियली मैं गया तो मैंने, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा काउंटर में कम टाइम लगने वाला है, फिर वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद वी आर नॉट सेटिस्फाइड इनिशियली, सो वी लुक अदर क्यू ऑल्सो, कि कहाँ पे जल्दी जल्दी लाइन कम हो रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं, अरे ये तो मेरे आगे था, बगल वाले लाइन पीछे था, ये तो आगे चला गया। फिर मैं क्या करूँगा, अपना लाइन छोड़ के वो लाइन में उसके पीछे चले जाऊँगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जॉकिंग, यहाँ से वहाँ, यहाँ वहाँ से यहाँ, ठीक है। पर जॉकिंग जनरली सीन इनिशियली फॉर सम टाइम। सो इनिशियली अगर कोई कस्टमर ज्वाइन करता है क्यू, तो इनिशियली फॉर अ मिनट और टू वो जॉकिंग करेगा। उसके बाद जब थोड़ा टाइम स्पेंड कर दिया उसने क्यू में, ही विल नॉट जॉकी, ठीक है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कैंडाल नोटेशन। सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ कैंडाल नोटेशन। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हो, तो वहाँ पे आप, यू कैन इजीली सी अ कैंडाल नोटेशन। प्रॉब्लम की स्टार्टिंग में ही कैंडाल नोटेशन आपको मिलेगा, ठीक है। पर बिफोर कैंडाल नोटेशन आई विल लेट यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू आई थिंक। सो इसका रेशियो ना हमेशा ध्यान देना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लैम्डा बाय म्यू, ठीक है। अराइवल रेट डिवाइड बाय सर्विस रेट। सो now think about it. Suppose arrival rate is 5 and service rate is 5, then I've already told you the system is optimal or very good system, right? Suppose second scenario, the arrival rate is 6 but the service rate is 5. In this case Q is going to get increased, right? Similarly 5 upon 6, so Q length is going to get decreased with time, right? तो ये तीन इसका बेसिकली इन दोनों का रेशियो से
हमें ये इनिशियली ये पता चल सकता है कि क्यू लेंथ इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, इट इज़ गोइंग टू गेट रिमेन सेम और इट इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज। ठीक है, ओके। सो कैंडाल नोटेशन पे आते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम में इफ़ यू सी m/m/1, ओके, then gd/infinite/infinite. Now, the first m represents the arrival rate, second m represents the service rate per hour, okay. Third parameter 1 is the number of server, 2, so there would be multiple servers, 2, 3, so this number will represent the number of servers, okay. उसके बाद आ जाता है gd, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जीडी क्या है, तो ये सर्विस का अप्रोच है। अब ये इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं जीडी में, ठीक है, जैसे कि FCFS, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बता देता हूँ। FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमन सर्विस सिस्टम में आप देखोगे तो सब हम हमेशा ये प्रेफर करते हैं, ठीक है। सेकेंड इज LCFS, ठीक है, ये आप कंपनीज में या ऐसे पेरिशेबल आइटम्स हैं इन्वेंट्रीज में जो ख़राब हो सकते हैं, तो उसको लास्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। ये बेसिकली फॉर एग्जांपल एक पेरिशेबल आइटम है जो मेरे वेयर हाउस में है, ठीक है, और वो जो बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो मैं क्या करूँगा, सपोज़ तो लास्ट कम मतलब जो नए नए वो प्रोडक्ट आए हैं, ठीक है, मेरे वेयर हाउस में, उसको मैं पहले यूज़ करूँगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो ख़राब हो जाए, राइट। सो ऐसे सिस्टम्स को LCFS बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है SIRO, सो मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स। हाँ, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, ठीक है, लॉटरी कि क्यू लेंथ है, सबके नाम का लॉटरी रहेगा, एक निकालेंगे, हाँ भाई पर्सन 1 और पर्सन 5, तो 5th पर्सन आएगा और वो उसको सर्विस मिलेगा, ओके। सो सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, नेवर सी, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी हमारी सिस्टम में। और लास्ट में GD, जनरल सर्विस डिसिप्लिन। जनरल सर्विस डिसिप्लिन मतलब जो हम लोग रेगुलरली जो जितने भी ह्यूमन सिस्टम्स हैं वहाँ पे हम लोग FCFS या जनरल डिसिप्लिन, दिस टू आर वन एंड द सेम, ओके। सो अगर आपको FCFS नहीं दिखा और GD दिखा तो दैट मीन्स इट इज़ ए टाइप ऑफ FCFS ओनली, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है क्यू, उसके बाद 5th टर्म है क्यू लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ लेंथ, एवरेज क्यू लेंथ, ठीक है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी टाइम पे अगर आप जाते हो और क्यू लेंथ देखते हो, तो व्हाट वुड बी द एवरेज क्यू लेंथ यू आर गोइंग टू गेट और फाइंड, ठीक है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस वैल्यू। और अभी इनिशियली वो इन्फाइनाइट लिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब वो हमेशा हर प्रॉब्लम में इन्फाइनाइट नहीं होगा, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। उसके बाद पॉपुलेशन, मैंने बताया था आपको सर्विस कौन सा किसके लिए है, बिस्किट एज अ इन्फाइनाइट पॉपुलेशन टाइप प्रोडक्ट, राइट। तो बिस्किट का डिमांड सब लोग करेंगे। सिमिलरली डिपेंड, ऐसे कोई प्रोडक्ट जो सिर्फ सीनियर या फिर सिर्फ जो जूनियर, फॉर एग्जांपल डायपर्स छोटे बच्चों के लिए रहता है, ठीक है, तो इट इज़ फाइनाइट पॉपुलेशन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसका जो डिमांड होगा, उसका जो क्यू होगा खरीदने का, वो फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए होगा, ठीक है। सो आपको दिस इज कॉल्ड एज कैंडाल नोटेशन, राइट। तो आपको किसी भी प्रॉब्लम में अगर कैंडाल नोटेशन दिया है, तो वो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इट कुड बी गिवन लाइक दिस, okay, means arrival rate is 5, service rate is 4, number of servers, multiple servers है 5, general discipline मतलब FCFS है, क्यू लेंथ इनफाइनाइट है, बहुत लंबा क्यू लेंथ है, ठीक है, और फाइनाइट भी कर सकते हैं इसे, और सिमिलरली पॉपुलेशन टाइप जो प्रोडक्ट है वो भी इनफाइनाइट है, एप्लीकेबल टू एवरीवन, ठीक है। सो ऐसा आपको कैंडाल नोटेशन प्रॉब्लम्स में दिख सकता है। तो आप इससे लैम्बडा, म्यू, नंबर ऑफ सर्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों से आपको पता चल जाएगा, ये तीनों से आपको
प्रॉब्लम टाइप समझ में आएगा कि ये एग्जाम में जो प्रॉब्लम है वो कौन से टाइप का है, बट आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ से वैल्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं क्यूइंग लेंथ के प्रॉब्लम्स में। सबसे पहला लेंथ ऑफ द सिस्टम। ठीक है, लेंथ ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एस। सेकेंड, लेंथ ऑफ क्यू। लेंथ ऑफ सिस्टम इज लेंथ ऑफ ऑल क्यूज। ठीक है, लेकिन ये लेंथ ऑफ क्यू मतलब एक सिंपल एक सर्वर का लेंथ, ये पूरे नंबर ऑफ सर्वर्स के एडिशन। ठीक है, वेटिंग टाइम इन सिस्टम, एक पर्टिकुलर कस्टमर का एवरेज वेटिंग टाइम इन सिस्टम, वो सिस्टम में कितना टाइम बिता रहा है। ठीक है, वेटिंग टाइम इन क्यू, वो क्यू में लाइन में कितना टाइम, सी डब्ल्यू क्यू जो है वो क्यू का टाइम है, डब्ल्यू एस पूरे सिस्टम का टाइम है। क्यू में ये तो सिर्फ टाइम वो सब कस्टमर क्यू में कितना टाइम बिता रहा है। इसमें जब मैं इसमें दो टाइप के टाइम्स होते हैं, एक तो पहले क्यू में जो टाइम स्पेंड कर रहा है और दूसरा टाइम स्पेंड इन गेटिंग सर्व। ठीक है, सपोज टिकट देने, वो उसका क्यू ख़त्म हो गया, वो आ गया काउंटर पे टिकट लेने के लिए, अब उसको टिकट देने में 1 मिनट लग रहा है। ठीक है, सो डब्ल्यू क्यू प्लस 1 इज डब्ल्यू एस, 1 मिनट और भी ऐड करना पड़ेगा बिकॉज वो टाइम इज टेकन गेटिंग हिम सर्व्ड, राइट। सो ये पूरे सिस्टम का जो कस्टमर टाइम स्पेंड करता है और ये सिर्फ क्यू में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, ओके, आफ्टर दिस वी विल कम टू फॉर्मूलेज। बहुत छोटा मॉड्यूल है, ठीक है, और नंबर ऑफ फॉर्मूलेज भी बहुत लिमिटेड हैं, सो हम देखेंगे। I would recommend everyone to note down all the formulas. So first is probability of 0 units in queue. ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप जाओ क्यू में और आपको कोई कस्टमर ना दिखे। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ओ। ठीक है, नाउ टेक केयर, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं कि हमेशा की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं गया और मुझे 0 कस्टमर्स दिख रहे हैं, मतलब मेरा जो म्यू है वो लैम्बडा से ज़्यादा है, बराबर। म्यू अगर ज़्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ अराइवल, नंबर ऑफ सर्विस। ठीक है, अगर सर्विस ज़्यादा है तो अराइवल से धीरे धीरे क्या होगा, क्यू लेंथ कम होगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 0 विल इंक्रीज, राइट। तो उसका फॉर्मूला है 1 माइनस लैम्बडा बाई क्यू, correct. So that is the probability. Average queue length, whenever you suddenly see a queue, so what is the average queue length that you can see? I think मैं यहाँ पे लिखूँगा because it is, so it is lambda square by mu minus lambda. Okay, so average length of queue, LQ. सो एवरेज क्यू लेंथ आपको जो दिखेगा वो हमेशा ये फॉर्मूला से मिल जाएगा। नाउ फाइव, व्हाट इज़ फाइव? फाइव इज़ बेसिकली ये जो लिखा हुआ फाइव इज़ लैम्बडा बाय म्यू। ठीक है, तो अगर आप इनिशियली अगर ये भी कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है, ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर दो तो फाइव से भी आप डायरेक्टली यू कैन फाइंड द वैल्यू। ठीक है, 5 स्क्वायर बाय 1 माइनस 5। ठीक है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ अराइवल डिवाइड बाय अराइवल एंड सर्विस्ड। ओके, उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स इन सिस्टम, ये एवरेज क्यू लेंथ है। ठीक है, और ये एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स हैं सिस्टम में। तो सिस्टम में आपको एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स कितने दिखेंगे। अब ये देखो, ये सिर्फ क्यू के लेंथ है। ठीक है, ये क्यू प्लस ये जो कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड वो भी हैं, तो दोनों के एडिशन। सो एल क्यू इज ओनली क्यू लेंथ, एल एस इज सिस्टम लेंथ और नंबर ऑफ यूनिट्स इन सिस्टम। ओके, सो ये कैसे मिलेगा, लैम्बडा बाय म्यू माइनस लैम्बडा। ओके, एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ अराइवल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एक बार ये अगर पता चल गया तो कस्टमर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, सो एक बीइंग अ कस्टमर, अगर मुझे किसी क्यू लेंथ को ज्वाइन करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे कितना वेट करना पड़ेगा, राइट। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू क्यू से, एवरेज वेटिंग टाइम। अगर मैं एज अ कस्टमर इस क्यू को ज्वाइन करने वाला हूँ, सो आई शुड नो हाउ मच टाइम आई एम गोइंग टू स्पेंड इन दिस क्यू, राइट। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा बाय म्यू माइनस म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्बडा। ये आपको कहाँ पे दिखेगा,
सो आप कभी भी किसी कस्टमर केयर को, ठीक है, किसी अच्छे कंपनी में कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, तो उनका जो क्यूइंग सिस्टम है वो आपको इजीली बता देता है कि द एस्टिमेटेड वेटिंग टाइम फॉर यू गेटिंग सर्व्ड इज़ 4 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट्स। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं वो, ठीक है, लैम्बडा बाई म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्बडा, ठीक है। सो सी दिस इज़ यूज्ड एवरीवेयर, राइट। तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हम लोग हमेशा अपने अगल आसपास देख सकते हैं, पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया था उस चीज़ों को। उसके बाद एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ अराइवल इन सिस्टम। सो एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ अराइवल, 1 सेकेंड। सो अगेन ये क्यू का वेटिंग टाइम है और ये पूरे सिस्टम में वेटिंग टाइम है, ठीक है। सो आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहे हैं कि एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स इन सिस्टम, ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम और स्पेंड्स लिख सकते हो अब। ये डब्ल्यू एस है तो वेटिंग आपको इजी जाएगा, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई थिंक एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स इन सिस्टम, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो उसका फॉर्मूला है 1 लैम्बडा, वेरी सिंपल। सो ये 4-5 प्रॉब्लम जो हैं वो क्वेश्चंस जो है ये आप जनरली फेस कर सकते हो एग्ज़ाम में रिगार्डिंग क्यूइंग थियोरी, राइट। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, स्टेडी स्टेट फार्मूला है, जिससे कि दे कैन आस्क कि प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन कस्टमर्स इन सिस्टम। फॉर एग्जांपल एक रेलवे काउंटर है और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी 10 कस्टमर्स और 10 पीपल इन क्यू, राइट। सो इसको आप कैसे बताएंगे या इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन कस्टमर्स इन क्यू इज 1 माइनस फाइव इज लैम्बडा, रेशियो ऑफ लैम्बडा एंड म्यू, राइट, इंटू 5 रेज टू एन। एन मतलब जो भी दिया, अगर 5 कस्टमर पूछा तो 5 टू द पावर 5, अगर 6 कस्टमर तो 5 टू द पावर 6, राइट। सो ये है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन कस्टमर्स इन सिस्टम, सिस्टम नॉट क्यू, सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो एक सिस्टम में आपको क्या प्रोबेबिलिटी कि आपको 10 लोग मिलेंगे अगर आप जाते हो सडनली। सो इट कैन बी कैलकुलेटेड विद दिस फार्मूला। मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। the problem is in a service department manned by one server, okay, a single server problem. On an average 8 customer arrive every 5 minutes, 8 कस्टमर हर 5 मिनट में आते हैं। तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू आवर, ओके। while the server can serve 10 customer in same time, means 10 customer per 5 minutes, ठीक है। assuming Poisson distribution for arrival and exponential distribution for service rate, दिस डजेंट बेसिकली ये यूज़ करके ही हमारे ये फार्मूलेज डेवलप किए गए। सो वी डोंट हैव टू लुक इनटू दिस, ओके। सो डिटरमाइन द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू, ओके, एल एस एंड एल क्यू। दिस इज एल एस, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम, एल एस, राइट, जो पहले देखा था। एल क्यू, एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स इन सिस्टम, अगेन सिस्टम, डब्ल्यू एस, एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स बिफोर बीइंग सर्व्ड, सर्व के पहले का टाइम मतलब क्यू का टाइम, तो डब्ल्यू क्यू। डब्ल्यू एस पूरा सिस्टम का टाइम पूछा है, ये डब्ल्यू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अराइवल रेट देखिए, यहाँ पे इन्होंने पर मिनट में किया है। आप यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस इनटू आवर, पर आवर, तो डिपेंड्स, आपका आंसर उस हिसाब से वेरी करेगा। सो पर मिनट यहाँ पे आपको एवरेज नंबर ऑफ और टाइम पूछा हुआ है, तो नंबर तो वही रहेगा, आर में कीजिए या मिनट्स में कीजिए, बट टाइम जो है, ठीक है, वो चेंज होने वाला है। तो डिपेंड्स, आप एक कॉमन प्रोसीजर के हिसाब से यू शुड ऑलवेज कन्वर्ट एवरीथिंग इन टू नंबर ऑफ आवर्स, राइट। अगर बहुत छोटा यूनिट है, जैसा 1 2 3 नंबर्स हैं, तो आप आवर्स में करेंगे तो आपको आंसर पॉइंट में आएगा। तो बेटर, अगर छोटे नंबर्स आ रहे हैं तो आप उसको मिनट्स में रखिए, और अगर 100 200 50 60 ऐसे आपको अराइवल रेट और सर्विस रेट मिल रहे हैं तो कन्वर्ट इन टू आवर्स, ओके।
सो अराइवल रेट इज लैम्डा 8/5, ठीक है. सो 8 पर एवरी 5 मिनट्स, सो 1.6 कस्टमर्स पर मिनट, ठीक है. अब इसको आप आवर्स में करेंगे तो दिस विल बी वेरी लेस, इन इट विल बी इन पॉइंट, राइट. तो आप उसको पर मिनट में करना. सर्विस रेट 10/5, सेम टाइम में 10 लोग सर्व हो रहे थे, तो 2 कस्टमर्स पर मिनट. तो आप इजीली देख सकते हैं कि आपका जो क्यू लेंथ है इट इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज्ड विद टाइम. ओके. ट्रैफिक इंटेंसिटी ये पूछा नहीं है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ दिया हुआ है. मीन अराइवल रेट जो मैंने आपको बताया था, ठीक है. मैंने फॉर्मूले में इसको 5 से रिप्रेजेंट किया था. ओके. अब ये 4 फॉर्मूले, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू LS लैम्डा बाय म्यू माइनस लैम्डा, ठीक है. तो इससे आपको 4 कस्टमर्स मिल जाएगा. एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, ठीक है, इन सिस्टम, पूरे सिस्टम में. एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू में कितने लोग दिखेंगे आपको. सो LQ फॉर्मूला वही है, 3.2 कस्टमर्स. एवरेज नंबर ऑफ टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स इन सिस्टम, तो टाइम इन सिस्टम, ठीक है. तो WS, टाइम इन क्यू WQ. फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आपसे, ठीक है. सो ये दिस इज द प्रॉब्लम दैट यू कैन, दिस इज द बेसिकली सिंपल प्रॉब्लम्स दैट यू विल बी आस्क्ड इन एग्जाम. कोई भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो आपको यही सब प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो इट इज़ वेरी स्कोरिंग टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक फॉर यू ऑल. ओके. सो नोट डाउन ऑल दी फॉर्मूलेज, ठीक है. और आप लोग के लिए मैं क्वेश्चंस भी दे सकता हूँ. यू कैन इवन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए. तो 1 and 2 क्वेश्चन एंड दिस इज 3 क्वेश्चंस अनदर, ठीक है. तो आप पॉज करके आप क्वेश्चन लिख के देन यू कैन ट्राई योर सेल्फ. वेरी सिंपल प्रॉब्लम. सो दिस इज डन फॉर द डे गाइज. Hope you don't have any doubt. If you have any doubt, you can let me know in the comment section. Thank you very much.